Problem number 8. If U and W are two subspaces of a vector space V, prove that U plus W is equal to U if and only if W is a subset of U. Subset of U. We are doing problems on more about subspaces. There are different results for subspaces. So if U and W two subspaces of V, दो सबस्पेसेस है किसी वेक्टर स्पेस V के, ठीक है, ये सपोज V है और इसमें W is also subset of U, like this is suppose U and this is your W. Yeah. So if this happens then U plus W will equal to U, यानी इसका अगर हम सम करें जो सम सेट होगा वो U के इक्वल होगा, ये प्रूव करना है। बोथ साइडेड प्रूफ। देखिए तो इसका प्रूफ वन साइड लेके चलते हैं। लेट अस सपोज W is a subset of W सबसेट है U का, सपोज। Then what I will prove? U plus W is equal to U. कैसे प्रूव करते हैं? टू सेट्स इक्वल, आपको क्या बताया था? We have two sets. A U plus W is a set. This should equal to U. क्या करेंगे इसमें? बताइए। How to show two sets are equal? बताओ भाई आलोक यादव। सर सबसेट प्रूव करते हैं सर। A is equals to B, तो A is a subset of B and B is a subset of A. Yes. तो यहाँ A is equal to B शो करना है, तो A subset of B, B subset of A. How to show A subset of B? Let X, एक एलिमेंट ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेट X belongs to U plus W, है ना, and I will show X belongs to U also. क्यों भाई? ये तो शो होगा। Take one element on the left hand side and then show that this element also belongs to the right hand side set. So let us suppose X belongs to this. तो क्या होगा if X belongs to this? बताइए क्या लिख सकता हूँ मैं X को? अगर X belongs to U plus W में है sum of two sets, what I can write X? X can be written as U plus W, है ना? A plus B सेट में एलिमेंट्स कैसे थे? A plus B, all A plus B, A belongs to A, B belongs to B. तो बताया था आपको। तो X जो होगा वो U plus W टाइप का कुछ एलिमेंट होगा, है ना? और अब ये U plus W में देखिए, where U belongs to U and W belongs to W. अब ये बताओ W जो है हमने एज्यूम करा हुआ ऑलरेडी W सबसेट है U का, है ना, ये तो हम लेके चले। तो U belongs to U है, इनफैक्ट W भी belongs to क्या U है, तो क्या कह सकता हूँ? कैन आई से X belongs to U? बताइए। यस सर। है ना, क्योंकि ये भी आपका U में जा रहा है और W भी U में ही है, बिकॉज W इज अ सबसेट। यहाँ पर हमने माना जिसका मतलब कि इट इज अ सम ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ U and U is a subspace, तो sum of two elements is a binary operation. It will again belongs to U, है ना? This is again belongs to U. Reason is this. So it means X belongs to U. इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड this is a subset of, है ना, एक राइट हैंड साइड, one half is done. Now
U is a U plus W is a trivial. You can write always. Conversely, U is always subset of U plus W. क्यों? As any U belongs to capital U can always be written. किसी भी U को मैं क्या लिख सकता हूँ? U is equal to U plus 0 लिख सकता हूँ, where 0 belongs to W. क्योंकि 0 क्या है? इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है, एंड बोथ आर द सब स्पेसेस, तो बोथ हैव कॉमन आइडेंटिटी. तो हर U को मैं U plus 0 लिख सकता हूँ, where 0 belongs to W. तो इसका मतलब क्या हुआ? Any U belongs to U can be written as U plus 0, है ना? So that means what? कि U is always subset of U plus W. होगा नहीं होगा? पूरा U इसके अंदर तो हो गई. So by this, so 1 and 2 implies U plus W is equal to U. देखिए जब W सबसेट है U का, है ना, इस प्रॉपर्टी से हमने ये चीज करी है. अगर U सबसेट और W आता तो U plus W इक्वल टू W. यहाँ पर अगर आपके पास ये चेंज जाए सबसेट U का, तो ये भी चेंज जाएगा. ठीक है, अभी वन साइड प्रूफ हुई है आपकी. कन्वर्स. नाउ आई विल अज्यूम, लेट अस सपोज U plus W is equal to U. ये लेके चलेंगे, क्या शो कर सकते हैं अब आप देखिए. अब अगर U plus W is equal to U है, हमें शो करना है W is a, ये शो करना है W is a subset of U. चलिए, तो W सबसेट ऑफ U, तो क्या करूं मैं? एलिमेंट लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में. सपोज सम Y belongs to W, है ना. अब अगर Y belongs to W है, तो क्या लिख सकता हूं मैं? कैन आई राइट Y belongs to, बताइए, है ना. भाई अगर Y belongs to W है, तो Y कैन बी रिटन एज W plus U आल्सो. वही सेम रीजन, अगर Y belongs to W है, सिंस Y belongs to W का मतलब Y कैन बी रिटन एज W और W plus 0. Any Y can be written as W plus 0, where W belongs to this and 0 belongs to U. तो हर एलिमेंट को मैं W के कॉम्बिनेशन लिख सकता हूँ दिस. तो इसका मतलब जो Y W में होगा वो W plus U में भी होगा. एंड W plus U इक्वल टू U है, ये हमने एज्यूम करा हुआ है, which equal to U. So this implies that Y is equal to Y belongs to U. So Y belongs to W implies Y belongs to U. This implies that W is a subset of U. Okay. तो ये आपका एक एक्सरसाइज थी. इसमें एक प्रॉब्लम और है, आई थिंक ये 9th प्रॉब्लम. लेट A and B be two non-empty. Let A and B be two non-empty. Yes. Finite subsets. Subsets. सब स्पेसेस नहीं कह रहे, सबसेट. सबसेट्स को दे आर रिप्रेजेंटिंग A and B. सब स्पेस को U V W से. तो फाइनाइट सब स्पेस सबसेट्स ऑफ वेक्टर स्पेस V. V is always a vector space. Then prove that intersection of A intersection B span. This is a subset of A intersection B. Sorry, subset of A intersection B is the intersection is going this.
and B is A union B, this equal to intersection of A plus intersection of B. ये दो पार्ट है भाई. ओके. Span of A intersection B will be a subset of intersection of span of A and span of B, and span of A union B will equal to span A plus span B. देखो फर्स्ट पार्ट के लिए प्रॉब्लम समझ में आई है? क्लियर है? क्यों भाई? यस सर। तो यहाँ पे आपको ये शो करना है कि जो स्पैन सेट है उसका पहले मैं इंटरसेक्शन लेके स्पैन करूं और फिर दोनों सेट का स्पैन का इंटरसेक्शन. दिस विल बी कंटेनिंग इन दिस, ये इसमें कंटेन करेगा. देखिए इसे. For showing this, I will prove for A part. First, we prove. Well, I will prove one thing. What? That if A is a subset of B, then this implies that span A is a subset of span B. ये आप प्रूव कर सकते हैं कि अगर A B के अंदर कंटेन कर रहा है तो स्पैन सेट में भी ये रिलेशन होगा, क्योंकि इससे फिर हम ये शो कर देंगे. अगर ये शो हो गया तो हम ये आराम से शो कर सकते हैं, क्योंकि A इंटरसेक्शन B सबसेट ऑफ A होता है और A इंटरसेक्शन B सबसेट ऑफ B होता है ना. इंटरसेक्शन का होता है स्मॉलेस्ट, तो ये A में भी होता है और B में भी. तो उसके लिए यू हैव टू प्रूव दिस कि अगर A सबसेट B के अंदर है देन दिस स्पैन इज इन दिस. ये हम प्रूव कर सकते हैं. ये लेके चले A सबसेट ऑफ B देन दिस. यहाँ पे अगर ये प्रूव करना है दिस लेफ्ट हैंड साइड कंटेन इन दिस, तो क्या होगा? लेट x बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ A ना. ये लेके ये आपके पास गिवन है, ये प्रूव करना है. इसको प्रूव करने के लिए यू विल टेक सम एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड यू विल प्रूव दिस एलिमेंट आल्सो बिलोंग्स टू ऑन द राइट हैंड साइड सेट. So let x belongs to span A. If x belongs to span A, x can be written as sum alpha 1 u1, alpha 2 u2, and so on, alpha n u1, where these alpha i's are some scalars and u1, u2, you know, here un they belongs to A. ध्यान रखना A is a subset of B. So this means that if you are writing the linear combination of the elements of A, in fact you are writing the linear combination of the elements of B, क्योंकि सारे A के elements B में भी. So it is what? It is a linear combination of the elements of A, which is in fact equal to say that linear combination of the एलिमेंट्स ऑफ बी. ये सारे एलिमेंट्स A के B के अंदर, तो जो भी x स्पैन A में जाएगा वो डेफिनेटली स्पैन B में जाएगा, है ना. ये क्या होता है? ये स्पैन B होता है. दिस इज व्हाट इज इक्वल टू स्पैन ऑफ B, linear combination, correction of linear combination. So this implies that x belongs to span of B. ये बात समझ में आई? Is it clear? Because of this property. यस सर। है ना. So this implies that so x belongs to span A implies x belongs to span B. This implies that this span A is contained in span. ये हमने पहले प्रूव कर दिया. इस सेकंड 1. अब इसकी हेल्प से हम ये लिख सकते हैं. Now since A intersection B is always a subset of A, है ना. अगर टू सेट्स आप ले A और B, तो जो उसका इंटरसेक्शन पार्ट होता है वो A का भी सबसेट होता है B का भी. So this implies that
अगर इंटरसेक्शन भी सबसेट ऑफ ए है तो अभी हमने प्रूफ किया कि स्पैन भी सबसेट होगा उसका. सो दिस इंप्लाइज दैट स्पैन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी is a subset of span of A from 1, है ना. And similarly A intersection B subset of B also. So this implies that span of A intersection B is a subset of span of B. तो कोई सेट आपका स्पेस ए का भी सबसेट है और बी का भी सबसेट है, तो कैन आई से दैट ये क्या होगा, इन दोनों के इंटरसेक्शन का भी सबसेट होगा, है ना. भाई ये स्पैन ए का भी सबसेट है और बी का भी है, तो अगर किन्हीं दो का होगा तो वो उसके इंटरसेक्शन का भी सबसेट हो जाएगा. तो स्पैन ए इंटरसेक्शन स्पैन बी, ये हमें से प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट. बी पार्ट इसे आप कर सकते हैं इजीली. टू सेट्स इक्वल शो करने, पहले एलिमेंट यहाँ लीजिए और शो करिए ये इसके इक्वल है. ठीक है, ये आपको शो करना है. हमने एक रिजल्ट शो किया था, अगर आपको याद हो, स्पैन ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, याद है? ए प्लस बी. हाँ, स्पैन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी के इक्वल है. इसका हेल्प करके आप इसे शो कर सकते हैं. इसे आप अपने आप करेंगे, DYS डू योर सेल्फ. इसे मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ. नेक्स्ट टॉपिक वी हैव, इसमें यही प्रॉब्लम्स थी. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनफैक्ट हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आगे चीजें डिफाइन होंगी. 3.5 लीनियर डिपेंडेंस. लीनियर डिपेंडेंस and independence and linear independence. When we say that vectors are linear dependence and independence, देखिए इसके लिए पहले वन डेफिनेशन. जो चीज देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको रिकॉल करते रहिएगा हाथों हाथ. प्योर थिंग. तो इसमें हर बार एक न्यू टॉपिक आएगा तो पीछे का आपको क्लियर होना चाहिए. एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ईच अदर. सो वन थिंग वी हैव अ लीनियर कॉम्बिनेशन. आपको पता है व्हाट इज लीनियर कॉम्बिनेशन. So we have a trivial linear combination. Suppose you have a linear combination alpha 1 u1 plus alpha 2 u2 and so on, alpha n un. ठीक, this is called a trivial. अभी तक हमने सिर्फ लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ा था, अब इसके हम कैटेगराइज कर रहे हैं ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल. दिस इज कॉल्ड a trivial linear combination. LC शॉर्ट में लिखता हूँ. If all the scalars are 0, all the scalars are 0, तो इसे हम कहेंगे ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन. मतलब अगर मैं सारे अल्फाज 0 ले लूं तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन है. जैसे अगर मैं 0u1 0u2 एंड सो ऑन, क्योंकि अल्फा को तो मैं कुछ आई कैन टेक एनीथिंग दिस. सो दिस इज अ ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन. दिस इज अ ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन. ये ट्रिवियल थिंग है कि 0 ले लें. अदरवाइज इट इज कॉल्ड, अब अगर ट्रिवियल है तो दूसरी क्लास होगी नॉन ट्रिवियल.
otherwise it is called non-trivial. non-trivial. अब अदरवाइज का मतलब क्या हुआ बताइए, क्या हुआ नॉन ट्रिवियल का मतलब? एग्जाम्पल बताइए। अल्फा नॉन जीरो, अल्फा नॉट जीरो, सारे अल्फा नॉट जीरो हो या एटलीस्ट एक नॉट जीरो हो जाए तो भी हो जाएगा? एटलीस्ट वन नॉन जीरो। एटलीस्ट हाँ एटलीस्ट वन हो जाए, सही बात है। सारे नहीं कि सारे ही हो, अगर एटलीस्ट, दैट मीन्स एटलीस्ट वन ऑफ अल्फास नॉट जीरो, कम से कम एक भी अगर नॉट जीरो हुआ, जैसे मैं फर्स्ट को ही ले लूँ, मान लीजिए 1u1, चाहे बाकी सब जीरो हो जाए, दिस इज नॉन ट्रिवियल। इसे हम कहेंगे ये नॉन ट्रिवियल है। या सारे ही आपके पास जो है नॉन जीरो हो जाए तो भी, एक एटलीस्ट वन का मतलब ये होता है कि ऑल, है ना, एंड सो ऑन एंड यू है, ये भी नॉन ट्रिवियल है, कम से कम एक हो जाए, so this is non-trivial linear combination. तो if you see here कि जो trivial linear combination है ये हमेशा क्या देगा आपको एक्चुअली, जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो ट्रिवियल linear combination is always a zero vector in fact, है ना, the trivial linear combination is a zero vector, the trivial linear combination is a zero vector, क्योंकि जब आप जीरो जीरो करेंगे तो क्या आएगा, ये जीरो u1 प्लस जीरो u2 जीरो un, इट विल बी नथिंग बट जीरो, और वेक्टर होगा क्योंकि u1 u2 वेक्टर है ना, तो ये जीरो वेक्टर होगा, उस केस में आपके पास ये जीरो आ रहा होगा, क्योंकि अगर जीरो वेक्टर नहीं है तो उसका ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो नहीं आएगा कभी भी, है ना। सो हियर वी हैव अ क्वेश्चन that what are the choices that the non trivial linear combination can also give us। देखो जीरो ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन तो हमेशा जीरो देगा, लेकिन द क्वेश्चन इज कि अगर हम नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन देखें ये जीरो कब दे सकता है, जैसे ये है मान लो, या ये है, यहाँ पर मैं अल्फा की क्या वैल्यू दूँ, जैसे ये है, यहाँ पर अगर अल्फा की चॉइस जीरो नहीं है तो अल्फा की क्या चॉइस हमारे पास हो कि ये वेक्टर जीरो बन जाए, व्हाट द चॉइस वी कैन हैव, है ना। द क्वेश्चन इज व्हाट द चॉइसेस ऑफ नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन हैज टू गिव अ जीरो वेक्टर, what the choices of alphas we have to get the zero vector of a non-trivial linear combination। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वेक्टर ले लूँ, सपोज करिए R2 के दो वेक्टर मैंने ले लिए 1 0 0 1, सपोज ये टू वेक्टर्स है, यू नो दे बिलोंग्स टू R2, हम यहाँ V2 लिखते हैं तो V2 लिख दीजिए, V2 का मतलब R2। अब ये एक वेक्टर U1 U2 है, ठीक है। अब मुझे क्या करना, आई वांट टू फाइंड अल्फा U1 प्लस बीटा U2, ये किस वैल्यू के लिए हमें जीरो वेक्टर दे सकता है। जीरो वेक्टर अब जो देगा जाहिर है यहाँ पर भी जीरो जीरो, इसे जीरो जीरो रखा, तो अगर मैं सॉल्व करूँ इसे तो इट विल गिव यू व्हाट द चॉइस यू कैन हैव। कितना आएगा देखिए, अल्फा इंटू वन प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस जीरो एंड जीरो प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो, सो दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा जीरो बीटा जीरो, है ना। तो अगर वेक्टर ये थे आपके पास u1 u2, तो इस केस में क्या आएगा, अल्फा जीरो बीटा जीरो चॉइस है जो आपको इसको जीरो दे सकती है ना। इसके अलावा आप कुछ और लेंगे तो जीरो नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ वैल्यू रखूँ ये अल्फा 1 0 प्लस बीटा 0 1, इसकी वैल्यू जीरो जीरो कब आएगी, अभी हमने सॉल्व किया सिर्फ अल्फा जीरो और बीटा जीरो के लिए, इसके अलावा कुछ भी वैल्यू रख के देख लो जीरो कभी नहीं आएगा, चेक कर सकते हैं, है ना।
देखिए इसे हम ये, तो इसका मतलब कि इफ यू हैव दिस टू वेक्टर्स तो ओनली जीरो इज द चॉइस, इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं। मान लो वेक्टर्स में कुछ और ले लूं, सपोज आई एम टेकिंग सम अदर वेक्टर्स, लेट 1 0 एंड 0 2, ये दो वेक्टर ले लिया, ये भी आपके v2 के। अब आई वांट टू चेक कि किस वैल्यू के लिए ये कॉम्बिनेशन आपका जीरो वेक्टर होगा, है ना। जीरो वेक्टर यहाँ पे भी जीरो, क्योंकि v2 है इसलिए जीरो वेक्टर का मतलब हुआ डबलेट्स, अगर v3 होता तो ट्रिपलेट्स होता। यहाँ आई वांट टू चेक कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा दिस शुड बी जीरो। सॉल्व करते हैं, चलिए। तो कितना आएगा, अल्फा इंटू 1, है ना, अल्फा 1 प्लस बीटा 0, और यहाँ पे भी जीरो आ रहा है क्या? ये सब 0 0 आएगा। अच्छा, यहाँ पे भी जीरो आ रहा है, अल्फा 1 प्लस बीटा दिस इज 0 प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो यहाँ भी जीरो आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, आ सकता है। अगर जीरो आ रहा है तो जीरो, यार ये तो आपके राइट है। अच्छा, चलिए कोई और वेक्टर अगर हम सोचे जिसमें जीरो नहीं आ रहा हो, इसमें एग्जांपल ट्रिपलेट्स का दिया, मैं 2 करना चाह रहा हूँ, उसने कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। सपोज हमने ले लिया 1 1 एंड 1 3, ये 2 वेक्टर्स ले लिए, सपोज बिलोंग्स टू v2। नाउ आई वांट टू चेक कि किस वैल्यू के लिए ये कॉम्बिनेशन आपका जीरो वेक्टर बनेगा, यानी कि व्हाट इज दिस जीरो वेक्टर, यानी इसे क्रिएट कराएंगे जीरो। तो यू विल बी गेटिंग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पे तो सारे जीरो वेक्टर्स ही आ रहे हैं यहाँ पे उसमें। अच्छा, क्योंकि हम यहाँ पे सारे एल आई वेक्टर्स ले रहे हैं, मुझे एक ऐसा वेक्टर लेना पड़ेगा जो एल डी है। ठीक, सपोज यहाँ पे मैंने 1 1 और ये ले लेते हैं 2 और 2 2, ऐसे 2 वेक्टर्स ले लिया हमने। अब ठीक है, 1 1 2 2 ले लो। इस कॉम्बिनेशन में अगर देखें, ये जो जीरो आ रहा है, इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस के जीरो आ रहा है, इसका लॉजिक है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। अभी हमने पहले ऐसा वेक्टर लिया, अब अगर आप देखें कि वो फॉर व्हाट वैल्यूज इट विल बी गिविंग यू 0 0, चलिए, तो यू विल बी हैविंग अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 0, अल्फा प्लस 2, है ना, सेम इक्वेशन हो गई है। तो यानी कि एक ही इक्वेशन है। देखिए अब यहाँ पे क्या Yes, sir. चॉइस है आपके पास, अब नाउ यू हैव अल्फा इज इक्वल टू -2 बीटा। इसका मतलब जब भी अल्फा को मैं -2 बीटा लूंगा यू विल बी गेटिंग 0। जैसे फॉर एग्जांपल, यानी कि अगर बीटा 1 ले लूं मैं, तो अल्फा कितना हो जाएगा, -2। इस कॉम्बिनेशन के लिए क्या हुआ, देखिए -2 ऑफ 1 1 प्लस 2 2, क्या आएगा देखिए जरा, 0 0, है ना। तो इन दैट केस यू गॉट 2 नॉन जीरो वैल्यूज। तो इसका मतलब कुछ वेक्टर्स के लिए तो आपके पास 0 0 ही आ रही थी, लेकिन कुछ वेक्टर्स ऐसे भी हैं जिनके लिए अल्फा बीटा नॉन जीरो भी आ सकता है ना। समझ में आई बात, ऐसा नहीं है कि हमेशा 0 0 ही आएगा। कुछ वेक्टर्स आपने देखे, जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल लिया या ये लिया, यहाँ पर जब हमने अल्फा बीटा सॉल्व किया कि किस वेक्टर के लिए ये लीनियर कॉम्बिनेशन 0 होगा, तो आपने देखा यहाँ पर अल्फा बीटा 0 0 आ रहे थे। लेकिन अगर इस टाइप का वेक्टर आपने लिया, इस टाइप के वेक्टर में द अल्फा बीटाज आर नॉट 0। इन वेक्टर में क्या खासियत थी आप देख सकते हो, इट इज मल्टीपल टू ईच अदर, है ना। यानी कि जो सेकंड वेक्टर है वो फर्स्ट पे डिपेंड कर रहा है, देखो, है ना। इसमें अगर 2 कर दूंगा तो यही तो आ जाएगा, जबकि यहाँ पर Yes, ये sir. डिपेंड नहीं कर रहा था। सेकंड वेक्टर इज टोटली डिफरेंट, या यू कैन से कि यहाँ पर 1 1 2 2 जो था, क्योंकि ये v2 में था, तो ये एक ही लाइन में लाई कर रहे थे, दे आर कोलिनियर। 1 1 2 2 क्या है, ये दे आर कोलिनियर। लेकिन ये क्या था 1 0 0 2, ये आपके पास कोलिनियर मतलब लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1 0 0 2, इट इज नॉट लाइंग ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन।
यहाँ पे 0 0 से भी पास करा सकता हूँ ना इस लाइन को मैं, क्योंकि जब सेम पॉइंट्स आ रहे हैं तो 0 0 भी आएगा, लेकिन इट इज नॉट पासिंग थ्रू रीजन. So in that way you can see that actually they are dependent. When the vectors are depending to each other, then your alpha beta will be non-zero, and they are not depending, they are different, then their alpha beta is zero. यही definition है linear dependent and independent. So how to check? So that is the definition. 3.5.2 a set u1 u2 un, कितने भी वेक्टर्स ले सकते हैं, वो टू वेक्टर्स तो मैं एग्जांपल लिया था सिर्फ. A set of vectors, suppose n vectors है ये, is linearly dependent से शॉर्ट में मैं LD लिख दूंगा, LD. If there exists a non-trivial linear combination of u1 u2 un that equals the zero vector, यानी कि कोई आपके पास अगर नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर जाए, कोई एक भी मिल जाए, तो वो हमारे कहलाएंगे LD. जैसे यहाँ पर आपने देखा इन वेक्टर्स के लिए आपके पास क्या था, ये नॉन ट्रिवियल था ना, क्योंकि अल्फा क्या था आपका -2 बीटा 1 है ना. अभी क्या बताया, नॉन ट्रिवियल के लिए क्या होगा, एटलीस्ट 1 शुड बी नॉन जीरो, और ट्रिवियल के लिए ऑल शुड बी जीरो. तो ये जो दोनों एग्जाम्पल थे, फर्स्ट ये ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन थे, अल्फा बीटा 0 आएगा सिर्फ, लेकिन इसमें आपके पास नॉन ट्रिवियल आ रहा था. तो अगर आपको सेट ऑफ वेक्टर्स दिया हुआ है, यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा बाय पुटिंग देम इक्वल टू 0. अल्फा बीटा की वैल्यूज अगर 0 आ गई तो इट विल बी Li, अदरवाइज LD है ना. Li क्या हो जाएगा, अगर ट्रिवियल आएगा तो दैट इज, अगर नॉन ट्रिवियल है तो LD, एंड इफ इट इज नो नॉन लीनियर कॉम्बिनेशन देन इट इज Li. दूसरी डेफिनेशन है इसकी, a set u1 u2 un is Li linearly independent, Li लिख देंगे इसे शॉर्ट में, if no non-trivial linear combination of u1 u2 un equals the zero vector. तो इसे हम Li कहेंगे. बात समझ में आई भाई, नहीं बताइए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. इस पे बेस हमारा डेफिनेशन है बेसिस डायमेंशन की, जो आपका वेक्टर स्पेस का मेन टॉपिक है. बोलिए. यस सर. यस सर. ठीक है. तो अगर आपके पास कोई भी नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल जीरो वेक्टर नहीं है तो वो Li होगा. तो यहाँ पर जो हमने देखा, यहाँ पे सिर्फ ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन ही था, तो ये जो सेट ऑफ वेक्टर है ये Li है ना. ये टू वेक्टर्स Li है, ये टू वेक्टर्स भी Li थे आपस में, लेकिन इसमें हमें एक मिल गया था नॉन ट्रिवियल, तो ये क्या था, LD. ये सेट LD था आपका. इससे एक प्रॉब्लम है, ये एग्जाम्पल 3.23. Prove that the vectors are LD. Prove that the vectors 1 0 1 1 1 0 and -1 0 -1. Prove that the vectors are LD. तो प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना होगा, इनका कॉम्बिनेशन लेंगे है भाई, और क्या करना है, इसे यहाँ गामा ले लो तीसरा, इसे इक्वेट कराएंगे किसके,
0 0 0 जीरो। अब यहाँ पर हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालेंगे। अगर जीरो आई, सिर्फ जीरो आई तो एल आई वरना एल डी। चेक कर लेते हैं, चलिए। तो क्या बनेगा देखिए, मल्टीप्लाई करें तो अल्फा वन द अल्फा अपॉन वाइस प्लस बीटा माइनस गामा, अल्फा इंटू जीरो बीटा दैट इज जीरो, एंड थर्ड वेक्टर इज अल्फा माइनस गामा। 3 इक्वेशंस मिल गए आपको। बीटा इज इक्वल टू जीरो, अल्फा माइनस गामा इज इक्वल टू जीरो। अब बीटा तो जीरो है, तो यू गॉट अल्फा प्लस बीटा माइनस दिस, है ना। अब इनको अगर आप सॉल्व करें, यू कैन सी अल्फा इज इक्वल टू गामा, अगर मैं यहाँ रख दूं, है ना, बीटा तो जीरो हो गया, तो यू आर गेटिंग अल्फा इज इक्वल टू गामा। अब अल्फा गामा में आपके पास जीरो भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं जीरो के अलावा कुछ और भी तो दे सकता हूँ। अल्फा वन ले लो, बीटा तो जीरो रहेगा, और गामा वन ले ले, अल्फा गामा हमेशा सेम वैल्यू आएंगी। तो